हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर निशांत गुप्ता पर। आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कैलेंडर्स, जिसमें वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द डे ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डेट। सो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर्स के बारे में। जब हम इंडिया में कैलेंडर्स की बात करते हैं हम बहुत सारे डिफरेंट कैलेंडर फॉर्मेट्स में डील कर रहे होते हैं। फॉर हिंदू फेस्टिवल्स वी हैव सेपरेट कैलेंडर, फॉर अदर कम्युनिटीज वी हैव सेपरेट कैलेंडर्स थ्रू विच हम उनके त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। बट एक कैलेंडर जिसकी हम बात करते हैं विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट्स विद 1st of January and ends on 31st of December. So 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड होता है। एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारे पास दो डिफरेंट कैलेंडर ईयर्स होते हैं। वन इज अ नॉन लीप ईयर विच हैज 365 days and the other one is a leap year which has 366 days. जनरली यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है कि a year which is a multiple of 4 is a leap year, which may or may not be true always. Understand, in case of century, a century which is a multiple of 400 is a leap year, otherwise not. मतलब अगर हम बात करें 1600 was a leap year, 1600 was a leap year, 1700 though it is a multiple of 4 but it was a non leap year, क्योंकि शताब्दी के केस में जो शताब्दी 400 का मल्टीपल है सिर्फ वही लीप ईयर होंगी। सो 1800 was not a leap year, it was non leap year. 1900 was a non leap year and 2000 was a leap year. It was a leap year. So basically the definition of a leap year is a year which has 366 days is a leap year. Okay, it may even if it is a multiple of 4, we are not 100% sure it will be a leap year because there is a exception कि अगर सेंचुरी है तो वो लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी। सो इन केस ऑफ सेंचुरी, अ सेंचुरी विच इज अ मल्टीपल ऑफ 400 इज अ लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। तो हम ये चीज याद रख सकते हैं। सो गाइज, when we talk about Gregorian calendar, so Gregorian calendar is divided into 12 months that start with January and ends in December, and each month has different number of days. मतलब किसी में 30 days होते हैं, किसी में 31 days होते हैं, और फरवरी में 28 या 29 दिन डिपेंडिंग कि वो लीप ईयर है या नहीं है, इसके हिसाब से दिया होता है। सो जनवरी हैज़ 31 days, ये फिक्स होता है। फरवरी में ये नंबर 28 या 29 रहता है। इफ़ इट इज़ अ लीप ईयर तो 29 days होंगे। If it is a non-leap year, then there will be 28 days in Feb. March will have 31 days, April 30 days, May 31 days, June 30 days, July will have 31 days, August will have 31 days, September 30 days, October 31 days, November will have 30 days and December will have 31 days. तो ये हमारा एक ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉर्मेट होता है। Again, this month is divided into weeks. So weeks or odd days. So what do we mean by odd number of days? जब हमने बोला कि एक non-leap year, a non-leap year has 365 days, which means there are 12 months. Whether it's a leap year or a non-leap year, there are always 12 months, and these 365 days can also be written as 52 weeks plus 1 day. Now this one extra day with respect to the number of complete weeks is called odd day. So जब हमारे पास complete week बनने के बाद जितने दिन बच जाते हैं उनको हम odd number of days बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक लीप ईयर की बात करें which has 366 days, so 366 days are basically 52 weeks plus 2 odd days. 2 odd days. So odd number of days mathematically is nothing but the remainder with 7. So mathematically
odd number of days is the remainder when number is divided by 7. When number of days are divided by 7. And we also know that remainder can never be greater than divisor. So अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, so remainder 7 से ज़्यादा नहीं होगा, which means odd number of days can be 1, 2, 3, 4, 5 और 6. अगर odd number of days 7 है तो वो एक complete week बनाएगा, then we call it 0 odd days. Now, how do we use these odd days in calculating the day for a particular date? इसको हम समझते हैं. For example, अगर हम बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सो इमेजिन कीजिए अगर फर्स्ट date of a month is Monday, then second will be Tuesday, then third will be Wednesday, fourth Thursday, fifth Friday, sixth Saturday and seventh Sunday, then eighth again will be Monday. सेम वे फिर कैलेंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा डेज वाइज, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन अगेन आफ्टर 7 days इट विल स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ. सो अगर फर्स्ट का मंडे है देन 8th विल बी मंडे, then 15th will be Monday, 22nd will be Monday, 29th will be Monday and 36th day. दो हमारा कैलेंडर फॉर्मेट 31 डेज से ज़्यादा किसी भी मंथ को अलॉट नहीं करता है, लेकिन अगर मैं किसी साल का पहला दिन अगर मंडे बोल रहा हूँ तो उस साल का 36th डे भी मंडे ही होगा. 43rd डे, 50th डे, 57th डे, all these days will be Monday. और मैथमेटिकली अगर मैं चेक करूं सो 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43 all these numbers when divided by 7 will leave the remainder 1. so basically मैं इन सभी नंबर्स को 7k + 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी ये सभी नंबर्स 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देंगे. इसका मतलब है कि जो भी नंबर 7 से डिवाइड होकर 1 देगा वो सब सेम डेज होंगे, वो सभी डेज सेम आ जाएंगे. अगर वो मंडे है तो सभी के सभी मंडे होंगे, विच मीन ईयर का 358th डे और 365th डे भी मंडे ही होगा, क्योंकि ये भी नंबर हमारे पास 7x + 1 की फॉर्म के नंबर है. सो अगर हम ऐसे ही चेक करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि 5th डे और 5th जनवरी ऑफ अ ईयर इज फ्राइडे, सो इसका मतलब हुआ कि अगर 5 जनवरी का फ्राइडे है तो 12th जनवरी इज ऑल्सो फ्राइडे, देन 19th विल बी फ्राइडे, देन 26th विल बी फ्राइडे ना. सो इसी ऑर्डर में चलता रहेगा. अगर हम चेक करें तो ये सारे के सारे नंबर 7k + 5 की फॉर्म के नंबर है, यानी सभी के सभी नंबर 7 से विभाजित होने पर शेषफल 5 देंगे. सो व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल लीव रिमाइंडर 5. सो अगर हम इसी लॉजिक को एक्सटेंड करें, सो वी कैन सी that 1st January is 7x + 1 की फॉर्म का नंबर and 365th day is also 7x + 1, which means कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन अगर उसमें 365 दिन है सो इट विल बी सेम. फिर से मैं समझाता हूं कि किसी भी साल का पहला दिन और साल का 365वां दिन will be exactly same. First day and 365th day of a year will be exactly same day. Now the problem is 365th day may or may not be the 31st December, because in case of non-leap year 365th day is basically 31st of December. But in case of leap year, 365th day of a year is actually 30th December. तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा, वो तब होगा जब ये एक नॉन लीप ईयर है. इन केस ऑफ लीप ईयर साल का पहला दिन और 30 दिसंबर सेम हो जाएंगे. मतलब ध्यान से इसको ऐसे समझते हैं.
सो इफ 1st जनवरी 2001 इज अ मंडे, अगर 1 जनवरी 2001 मंडे है, सो गाइज 1 जनवरी 2001 मंडे, नाउ 2001 इज अ नॉन लीप ईयर, इट इज अ नॉन लीप ईयर, विच मीन्स कि जो 1 जनवरी का दिन है वही 31 दिसंबर भी होगा। ऐसा हमने कैसे समझा? क्योंकि 1 जनवरी फर्स्ट डेट इज 7x + 1, 7 × 0 + 1 लिख सकते हैं, एंड 365 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7 × 52 + 1 ना। तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन नॉन लीप ईयर में सेम हो जाता है, यानी 1 जनवरी 2001 अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2001 भी मंडे ही होगा। देन व्हाट विल बी 1st जनवरी 2002? सोचिए, अगर 1 जनवरी 2001 मंडे है तो 31 दिसंबर 2001 भी मंडे होगा। सो इसका मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2002 विल बी अ ट्यूसडे, अगला दिन आ जाएगा। सो इफ इट इज अ नॉन लीप ईयर, तो हम 2 ईयर के सेम डेट को 2 कंसेक्यूटिव डे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर लीप ईयर का इफेक्ट नहीं आ रहा है, विच मीन्स अगर 1 जनवरी 2001 मंडे है तो 1 जनवरी 2002 ट्यूसडे होगा। देन 1st जनवरी 2003 विल बी वेंसडे, एंड व्हाट विल बी 1st जनवरी 2004? नाउ 1st जनवरी 2004 विल बी अ थर्सडे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें तो लीप ईयर आ गया। यार लीप ईयर आपको पता लगता है लीप ईयर हो गया है? व्हेन यू क्रॉस 29th Feb, आप 1 जनवरी 2003 वेंसडे बता रहे हैं, 1st जनवरी 2003 इज अ वेंसडे, 2003 इज अ नॉन लीप ईयर। इसका मतलब हुआ कि इस साल 365 दिन होंगे, विच मीन 31st December 2003 विल ऑल्सो बी अ वेंसडे। तो फिर अगला दिन थर्सडे हो जाएगा। अब रात में दिन तो गायब नहीं कर सकते ना। बट फ्रॉम 1st जनवरी 2004 टिल 1st जनवरी 2005 हम 29th Feb क्रॉस कर चुके होंगे, तो लीप ईयर का इफेक्ट आएगा। तो अभी क्या होगा, जो 1st जनवरी 2004 है वो 30th December, बिकॉज इट इज अ लीप ईयर, इसमें एक दिन आगे चले गए हम। तो जब हमने 29th Feb क्रॉस किया तो हमारे लिए एक दिन एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। अब हमारा जो 31 दिसंबर होना था वो 30 दिसंबर हो जाएगा, विच मीन्स कि 1 जनवरी 2004 और 30 दिसंबर 2004 विल बी थर्सडे, यानी कि 31st December 2004 इन दिस केस विल बी फ्राइडे, और अगले दिन 1 जनवरी 2005 को इट विल बी सैटरडे। ओके, सो अगला दिन क्या होगा? 1st जनवरी 2006। अब 2005 इज अ नॉन लीप ईयर, सो अगला दिन संडे आ जाएगा। 2007, what will be 2007? It will be Monday. 2008 will be a Tuesday. 2009, अब हम 2008 से, जब 1 जनवरी 2008 से हम 31 दिसंबर 2008 की बात करते हैं, तो उस बीच में हम लीप ईयर क्रॉस कर रहे होते हैं। फ्रॉम 1st जनवरी 2007 टिल 1st जनवरी 2008 हमें 29th Feb का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जब तक हमने 29th Feb क्रॉस नहीं किया, वो एक एक्स्ट्रा दिन हमने क्रॉस नहीं किया, तब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर 1 जनवरी 2007 मंडे है तो अगले साल का पहला दिन ट्यूसडे होगा। लेकिन जब हम 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 के लिए जाएंगे तो इसमें हमें 29th Feb मिलेगा बीच में। दैट मीन द 1st January 2009 will not be a Wednesday, it will be a Thursday. Now 1st January 2010 will be a Friday, 11 will be a Saturday, 12 will be a Sunday and so on. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास 1st January 2001 was a Monday. 1st January 2001 was a Monday and 1st January 2007 is also Monday. So can we say the calendar of both the years will be same? Calendar of 2001 and 2007 will be same. When I say calendar will be same, of course होली दिवाली दशहरा सेम नहीं होंगे, because वो हम एक डिफरेंट कैलेंडर फॉर्मेट के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो व्हेन आई से कैलेंडर विल बी सेम, ग्रेगोरियन कैलेंडर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 18th of जुलाई। सो ये सब सेम डे होंगे। ओके, नाउ
1st January 2002 is a Tuesday and 1st January 2008 is also a Tuesday. Now can I say calendar of both the years will be same? No. Now understand why. साल का पहला दिन सेम होगा तो कैलेंडर सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. 2001 एंड 2007 बोथ आर नॉन लीप ईयर्स, दोनों में ही 365 दिन है. लेकिन जब हम बात करते हैं 2002 एंड 2008, इट इज़ अ नॉन लीप ईयर वेर एज 2008 इज अ लीप ईयर. तो होगा क्या कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 28 फैब तक हमारे पास कैलेंडर सेम रहेगा 2002 और 2008 के लिए. लेकिन 2008 में 29 फैब भी आएगा, जबकि 2002 में हमारे पास 29 फैब नहीं होगा. तो साल का पहला दिन सेम होने से कैलेंडर सेम नहीं होगा. कैलेंडर तब सेम होगा जब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आर सेम एंड बोथ आर ईदर नॉन लीप ईयर और लीप ईयर्स. या तो दोनों लीप ईयर हो या दोनों नॉन लीप ईयर हो, तब ऐसा होगा. तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि 2001 में मंडे था, 2007 मंडे है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 6 साल आगे बढ़ा हूँ तो कैलेंडर सेम हो गया. डज दैट मीन कि अगर मैं 1 जनवरी 2013 की बात करूँ तो ये कैलेंडर सेम होगा? सी, इट विल बी अ मंडे. इज दैट ट्रू? नो. अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज 2012 इज अ लीप ईयर. क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसका पहला दिन संडे है, तो इसका लास्ट डे मंडे होगा. 1 जनवरी 2012 अगर हमारे पास संडे है तो फिर हमारे को 30 दिसंबर 2012 संडे मिलेगा, बिकॉज 30 दिसंबर विल बी 365th डे ऑफ दिस ईयर. समझ आ रहा है? सो 31st December 2012 in this case will be Monday and 1st January 2013 will not be Monday, it will be Tuesday. So ऐसा भी कोई लॉजिक हम नहीं लगा सकते कि इतने 6 साल के बाद कैलेंडर डेफिनेटली सेम हो जाएगा. लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें पता लगे कि इतने साल के बाद कैलेंडर सेम हो जाएगा? तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा. सो कैलेंडर दोस्तों हर 400 साल के बाद रिपीट होता है. तो अगर आप 400 साल का कैलेंडर किसी तरह से याद कर ले तो हमारा जैकपॉट लग जाएगा. मतलब हम बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी 0001 से जो कैलेंडर हमने फॉलो किया टिल 31 दिसंबर 0400 तक जो हमने कैलेंडर फॉलो किया, वही सेम कैलेंडर हमने फॉलो किया है 1 जनवरी 401 to 31 December 800. The same calendar we followed from 1 January 1601 to 31 December 2000, 400 साल के लिए. और 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2400 तक हम यही कैलेंडर फॉलो करने वाले. सो कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ एग्जैक्टली आफ्टर 400 years. तो अगर आपके पास जब मैसेज आते हैं कि दिस इज अ वेरी स्पेशल मंथ, it has 5 Sunday, 5 Monday, 5 Tuesday, and this will happen after 837 years, something like that. So always remember, जो चीज़ 400 साल में नहीं हुई वो कभी भी नहीं होगी. अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूल्स फॉलो कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी meteor shower or the some other activities which are happening in the universe. मैं बात कर रहा हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कैलेंडर फॉर्मेट की. तो अगर 400 साल में कोई कैलेंडर फॉलो नहीं किया है पैटर्न, तो वो उसके बाद भी नहीं करेगा. यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर. अगर हम ये याद रख लें, क्योंकि 400 साल का कैलेंडर रिपीट याद रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 1 second, लेट मी इरेज दिस. सो व्हाट आर द पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर, वो हम ध्यान रखते हैं. So first 100 years will have 5 odd days. What do I mean by first 100 years?
सो 100 ईयर्स हैज़ 5 odd days. पर वो 100 ईयर कब से शुरू होते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 1 जनवरी 1 till 31st December 400, 31st December 100. हम 400 ईयर्स का पैटर्न नोट करेंगे बिकॉज उसके बाद फॉर्मेट रिपीट होना शुरू हो जाएगा. तो 1 जनवरी 1 से 31 दिसंबर 100 तक हमारे पास 5 odd days होते हैं. फर्स्ट 200 ईयर्स विल हैव 3 odd days. सर 100 में 5 थे, 200 में कम कैसे हो गए? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 जनवरी 1 से 31st of December 100 तक वी हैव 5 odd days, 5 odd days. तो हमारे पास 1st of January 101 से 31st of December 200 तक भी 5 odd days ही होंगे. विल हैव 5 odd days, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है. सो पहले 100 साल और अगले 100 साल विल बी एग्जैक्टली सेम, विच मीन्स कि अगर मैं 1 जनवरी 1 से बात कर रहा हूँ टिल 31st December 200, सो आई हैव 10 odd days, एंड 10 odd days आर नथिंग. 10 odd days की जब हम बात करते हैं, सो इसका मतलब है 1 वीक, 1 कंप्लीट वीक प्लस 3 odd days. सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट दिस. सो हमारे पास 10 दिन का मतलब हुआ 1 हफ्ता 3 दिन. तो उसी लॉजिक से हमारे पास 200 ईयर्स में विल हैव 3 odd days. इन 300 ईयर्स वी हैव 1 odd days. कैसे? 5 + 5 + 5 15. 15 मतलब 2 वीक 1 डेज. और जब हम बात करते हैं 400 ईयर्स की, सो वी विल हैव 0 odd days. तो सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? अब ध्यान दीजिए, 400 में क्या होगा? फर्स्ट 100 ईयर्स विल गिव यू 5 odd days, नेक्स्ट 100 ईयर विल गिव यू 5 odd days, नेक्स्ट 100 ईयर विल गिव यू 5 odd days. ये 100, ये 200, ये 300 तक गए. बट 400 में वी गेट 6 odd days बिकॉज 400 इज अ लीप ईयर. 100, 200, 300 वर नॉट लीप ईयर, 400 इज अ लीप ईयर. तो हमारे पास टोटल 400 साल में 21 डेज बनते हैं, विच इज इक्वल टू 3 वीक्स प्लस 0 odd days. ओके, सो ये तो बात हुई, हम लोग 100 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं. 100 ईयर 5 odd days, 200 ईयर 3 odd days, 300 ईयर 1 odd day एंड 400 ईयर्स 0 odd day. अगर हम लेस देन सेंचुरी की बात करें, यानी अगर हम सेंचुरी से कम ईयर्स की बात करें, सो 28 ईयर्स और अ मल्टीपल ऑफ 28 ईयर्स विल ऑलवेज गिव यू 0 odd days. So 28 years 0 odd days. 28 का second multiple is 56 years will end in 0 odd days, and 84 years will also give you 0 odd days. तो ऐसा हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको समझते हैं. देखो, when we say 28 years, now 28 years में कुछ ईयर लीप ईयर होंगे और कुछ नॉन लीप ईयर होंगे. सो अगर हम बात कर रहे हैं इट इज नॉट अ सेंचुरी वाला केस, तो 28 ईयर्स में 100 का कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है. इसका मतलब वो एक्सेप्शन वाला काम जो हम बोल रहे थे कि 400 का मल्टीपल होना जरूरी है, वो यहां पर जरूरी नहीं है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट 28 ईयर्स, एनी ईयर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 विल बी लीप ईयर. भाई 4, अगर हम बात कर रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24, सो दीज ईयर्स विल बी लीप ईयर. 28 विल बी लीप ईयर. तो हमारे पास 7 लीप ईयर्स होंगे, और आउट ऑफ 28 4 के 7 मल्टीपल्स हैं, 7 लीप ईयर, एंड देर आर 21 नॉन लीप ईयर्स. 28 में से 7 लीप ईयर है, तो 21 नॉन लीप ईयर होंगे. अभी हमने एक और चीज यहां पर पढ़ा था कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में हमारे पास 365 और 366 डेज वाला कंसेप्ट होता है, विच मीन्स 52 वीक्स plus 1 day, and 366 is 52 weeks plus 2 odd days. अब इसको 2 days या 2 odd days लिख रहे हैं यहाँ पर. तो जो 21 ईयर्स आपको मिल रहे हैं, वो सभी ईयर आपको एक एक दिन एक्स्ट्रा देंगे, एंड यूल हैव 21 odd days, एक्स्ट्रा डेज. एंड दीज 7 ईयर्स विच आर लीप ईयर्स, वो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा देंगे. सो यूल हैव 14 odd days. टोटल मिलाकर आपके पास आते हैं 35 odd days. 35 odd days, which means 5 weeks. So you'll be left with
0 odd days. So that is how we get 0 odd days in 28 years. So next 28 year will also give you 0 odd days and 84 years will also give you 0 odd days. So guys, इसके आगे चलते हैं and let's learn how to use this logic. हमें याद क्या रखना है? सिर्फ ये. All we need to remember is ये चार नंबर कि 100 years 5 odd days, 200 year 3 odd days, 300 year 1 odd day, 400 years 0 odd day and 28 का कोई भी multiple will give us 0 odd days. So इसके आगे समझते हैं questions. Guys, don't forget to subscribe my channel, do like the video and share it with your friends. So how to calculate day on any given date, इसको हम समझते हैं. So let's start with the question. For example, if the question says what day of the week was 15th of August 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? So आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं it is a Independence Day. वो ठीक है, लेकिन हफ्ते का कौन सा दिन था? So guys, पहली चीज, आपको कैलेंडर कैलकुलेट करने आते हैं नहीं आते, you should always remember this. It is a very important day and it was a Friday. ना, ये बहुत बहुत खास दिन है हम सभी लोगों के लिए. So ये याद रखना बनता है. But how do we calculate this? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की, तो हमारे पास एक बहुत साधारण तरीका है. हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें याद रखना है कि 1 जनवरी 0001 मतलब पहले साल का पहला दिन जब हमने माना, सो इट वाज मंडे व्हेन कैलेंडर वर करेक्टेड इन 15-16 सेंचुरी. तब इसको इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से किया, लेकिन दोनों ही कैलेंडर में 1 जनवरी 1 हमारा मंडे था. तो अगर 1 जनवरी 001 मंडे था, विच मीन्स कि 1 जनवरी 401 भी मंडे रहा होगा, 1 जनवरी 801 भी मंडे रहा होगा, एंड दैट इज हाउ वी कैन रीच टिल 1947. हमें करना क्या है? हमें एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस लगाना है. हमें 1 जनवरी 0001 से लेकर 15th ऑफ अगस्त 1947 तक के ऑड नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं. अब सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम लग रहा है, इतने 1947 ईयर्स में हाउ वुड वी कैलकुलेट द ऑड नंबर ऑफ डेज? इसके लिए भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. हम जिस ईयर की बात कर रहे हैं हमेशा उससे एक कम ईयर हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 1947, सो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कब से? फ्रॉम 1 जनवरी 0001 टू 15th ऑफ अगस्त 1947 तक हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स 1946 है. 1947 तो अभी चल रहा है ना, रनिंग है. 15th ऑफ अगस्त की हम लोग बात कर रहे हैं. सो हम 1946 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, विल राइट दीज 1946 ईयर्स इन पार्ट्स. कैसे? हम इसमें से 400 के मल्टीपल्स अलग करेंगे, सेंचुरीज अलग कर लेंगे, जो 400 का मल्टीपल नहीं उनको अलग कर देंगे, एंड विल राइट द रिमेनिंग नंबर लाइक दिस. अब यहां पर हमें याद रखना है क्योंकि 400 ईयर्स हमें 0 ऑड डेज देते हैं, सो 400 का कोई भी मल्टीपल विल गिव अस 0 ऑड डेज. ये हमें 0 ऑड डेज देगा. दूसरा हमने पढ़ा था 100 ईयर 5 ऑड डेज देते हैं, 200 ईयर 3 ऑड डेज देते हैं, 300 ईयर्स 1 ऑड डे. और अब हमें कैलकुलेट करना है कि इन 46 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज होंगे. सो इसका पहले मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, देन आई विल गिव यू अ शॉर्टकट कि 46 में आप पहले नॉन लीप ईयर अलग कीजिए और फिर लीप ईयर्स अलग कर लीजिए. सो यहां पर 46 में जो नंबर 4 के मल्टीपल है, जितने भी नंबर आपको 4 के मल्टीपल मिल रहे हैं टिल 46, 4 के 11 मल्टीपल्स हैं, सो देयर आर 11 लीप ईयर्स एंड रिमेनिंग 35 will be non-leap years. Every non-leap year will give you 1 extra day and every leap year will give you 2 extra days. So total number of extra days will be 57.
and 57 when divided by 7 will give you remainder 1. So these 46 years will also give you 1 extra day. तो अभी हम पहुंच चुके हैं 1st of January 0001 से लेकर 31st of December 1946 तक, और हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा. वी हैव गॉट 2 odd days. अब हमें जाना है 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक. देखिए, अगर आप जनवरी से अगस्त तक जाना चाहते हैं तो आपको क्रॉस करना है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. जनवरी हैज 31 डेज इन इट. 31 डेज का मतलब हुआ 4 हफ्ते 3 दिन. 31 when divided by 7 will leave remainder 3. तो जनवरी से आपको 3 ऑड डेज मिलते हैं. फरवरी आपको कितने ऑड डेज देगा ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि ये नंबर लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है. नाउ 1947 इज अ नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर मतलब फरवरी में इसमें 28 दिन होंगे, यानी पूरे 4 हफ्ते बनेंगे और कोई एक्स्ट्रा दिन हमारे पास नहीं आएगा. मार्च हैज 31 डेज विच मीन 3 ऑड डेज. अप्रैल 30 डेज का होता है, तो वहां पर आपको 4 हफ्ते 2 दिन यानी 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे. मई हैज 31 डेज विच मीन 3 एक्स्ट्रा डेज. जून 30 डेज मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा. जुलाई 31 डेज विल गिव यू 3 ऑड डेज. बट अगस्त के आप 31 दिन नहीं ले सकते क्योंकि हम 15 अगस्त की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें 15 अगस्त तक जाना है. तो 15 अगस्त तक हमारे पास 2 हफ्ते और 1 दिन आएगा. 15 अगस्त तक, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारे पास 2 हफ्ते 15 दिन है विच मीन 2 वीक्स 1 ऑड डे. जहां पर भी 7 बन जाए आप उसको कैंसिल कर सकते हैं. सो क्योंकि कंप्लीट वीक हो गया, कैलेंडर अपने आप रिपीट होना शुरू हो जाएगा. सो 2 + 3 + 2 7, 3 + 3 + 1 7. तो यहां से बचते हैं सिर्फ 3 ऑड डेज. सो टोटल 5 ऑड डेज. अगर आप मैथमेटिकली इस ऑपरेशन को समझें विच यू विल बी एबल टू सॉल्व ओरली आफ्टर डूइंग 3-4 क्वेश्चंस, तो आपको पता लगेगा हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ 7 से रिमाइंडर निकाले जा रहे हैं. एंड वेन एवर वी फाइंड द रिमाइंडर और कैलकुलेट द रिमाइंडर विथ 7, तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 7 से जब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 0 मतलब 7 का मल्टीपल हो गया. सो अगर आपका फाइनल ऑड डेज 1 आता है तो इट विल बी अ मंडे. इफ यू गेट 2 ऑड डेज इट विल बी अ ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे एंड 0 ऑड डेज मतलब संडे. सो सिंस दिस डेट गिव्स यू 5 ऑड डेज, that means it was a Friday. So initially this process is very difficult to understand, लेकिन जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चंस और इसके कराऊंगा you will be able to connect with it और आपको लगेगा यार ये बहुत आसान तरीका है, इसको हम किसी भी आसानी से बड़े आराम से इसको हम कर सकते हैं कोई बिना किसी डिफिकल्टी के. So let's calculate one more question. What day of the week was 26th of January 1950? हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हमें लिखना है कि हमें 1 जनवरी 0001 से लेकर और 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 तक के कंप्लीट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स की हमें बात करनी है. सो नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स की अगर हम बात करें सो 1949 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं अभी तक. 1950 शुरू हुआ है, सो 1949 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 1600 + 300 + 49. Here I'll also give you the shortcut अभी. तो ये हमें देगा 0 ऑड डेज, ये हमें देता है 1 ऑड डे. आपको पता है कि 28 ईयर्स आपको 0 ऑड डेज देते हैं और 28 का कोई भी मल्टीपल भी आपको 0 ऑड डेज देगा. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि आप 49 ईयर्स में से 28 का जो भी मल्टीपल आप माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम, आप उसे सब्ट्रैक्ट कर लें. सो अगर मैं 49 से 28 माइनस करूं सो आई एम लेफ्ट विथ 21 ऑड डेज. अब आपको इस नंबर में से लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर्स अलग करने. सो हाउ मेनी नॉन लीप ईयर्स आर देयर?
And how many leap years are there? Till 21 there are 5 leap years. 4 के 5 मल्टीपल होते हैं, 4 5 are 20, and remaining 16 will be non leap year. Non leap year gives you 1 extra day, leap years gives you 2 extra days. So in all we have 26 odd days, and when divided by 7 it gives remainder 5, which means 5 odd days. So हमारे पास इन 49 ईयर्स से अगर हम बात करें, सो वी हैव 5 odd days. मतलब टिल 31st December 1949 वी हैड 6 odd days. लेकिन हमें यहाँ तक थोड़ी जाना है, हमें जाना है 26 जनवरी तक. इसका मतलब हमें जनवरी में 26 तक पहुँचना है. 1 जनवरी से 26 जनवरी तक 26 दिन होंगे, और उन 26 दिन में से अगर मैं कंप्लीट वीक हटा दूँ, सो अगेन आई एम लेफ्ट विद 5 odd days. दैट मीन्स ये जनवरी के, हम लोग जनवरी 1950 के जो हमारे पास ऑड डेज आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं. यानी हमारे पास टोटल हो गए 11 ऑड डेज. फिर से 11 ऑड डेज मतलब 1 वीक प्लस 4 डेज, और 1 वीक 4 डेज, 4 डेज मतलब 1 डे मतलब मंडे, 2 डेज मतलब ट्यूसडे, 3 डेज मतलब वेंसडे, एंड 4 डेज मतलब Thursday. So this date 26 Jan 1950 was a Thursday. It was a Thursday. I hope थोड़ा सा प्रोसेस बेटर हुआ होगा. Let's discuss one more date. ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Let's discuss one more date. What day of the week was 18th of July 1432. Now do I need to write down the entire process? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों. देखिए 1432 की हम लोग बात कर रहे हैं, विच मीन्स 1431 ईयर्स कंप्लीट हुए, जिसमें से हम 400 के मल्टीपल अलग करेंगे विच इज़ 1200. फिर हमारे पास 200 अलग हो जाएगा एंड 31. दिस गिव्स अस 0 odd days. 200 ईयर्स विल गिव अस 3 odd days. 100 में 5, 200 में 3. 31 में से हम 28 माइनस करेंगे, क्योंकि 28 ईयर्स हमें 0 odd days देते हैं. रिमेनिंग 3 ईयर्स में सारे ही नॉन लीप ईयर होंगे, क्योंकि 4 का कोई मल्टीपल नहीं है. ये सारे के सारे नॉन लीप ईयर हो गए, क्योंकि 4 साल 4 का कोई मल्टीपल आपको लीप ईयर मिलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 तो बन ही नहीं रहा है. सो ये सब आपको एक एक दिन एक्स्ट्रा देंगे, विच मीन 3 odd days. यानी 31 ईयर्स विल गिव यू 3 odd days. तो आपके पास 31 दिसंबर 1431 तक, 31 दिसंबर 1431 तक टोटल 6 odd days आ जाते हैं. 6 odd days. हमें जाना है जुलाई तक, यानी हमें क्रॉस करना है क्या? हमें क्रॉस करना है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. जुलाई की हम लोग बात कर रहे हैं. सो जनवरी विल गिव अस 3 odd days. फैब चेक करते हैं. 1432 इज अ लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर है तो 29 डेज, यानी 4 हफ्ते 1 दिन. मार्च 3 डेज, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई हम लोग बात कर रहे हैं 18th of July. 18th of July इज 2 weeks 4 days ना. यहां से हमारे पास इतने एक्स्ट्रा दिन आते हैं. अब फिर से वही, जहां पर भी 7 बन जाए आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. 3 1 3 7, 2 3 2 इज 7. सो यहां से बचते हैं सिर्फ 4 odd days. 4 odd days, विच मीन्स टोटल हमारे पास आते हैं 10 odd days. एंड 10 odd days मतलब 1 week प्लस 3 days. तो हमारे पास 1 जनवरी 0001 से लेकर 31 दिसंबर 18 जुलाई 1432 तक 3 odd days आ रहे हैं. एंड 3 odd days मतलब अभी मैंने बताया, इफ यू गेट 1 odd day इट वॉज अ मंडे, इफ यू गेट 2 odd days इट वॉज अ ट्यूसडे, इफ यू गेट 3 odd days इट विल बी अ वेंसडे. सो दिस डेट वॉज अ वेंसडे. आई होप ये प्रोसेस सभी को समझ में आया होगा. व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस डेट? एनी गेसेस? None? It's my birthday. Of course, I'm not a vampire. So 1432 नहीं, ईयर सही नहीं है, डेट इज करेक्ट. सो
Let's try one more variety. Now this question is a condition based question. It says if 26 January 1950 was a Sunday, then what day of the week was or will be, कोई भी और डेट दे सकती है. तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि ये दिन ये था तो क्या होगा. अब आपको पहले ये वेरीफाई करना है कि क्या एक्चुअली 26 जनवरी 1950 संडे था. वैसे तो हमने अभी चेक किया था, बट लेट्स डू इट अगेन ताकि हमारे को प्रोसेस बेटर हो जाएगा. पहले हम इस डेट की बात करते हैं. तो हमारे पास 1949 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 49, जिसमें हमारे पास 1600 0 और डेज देता है, 300 1 और डे देता है. 49 में से हम 28 माइनस करेंगे 21. यहाँ पर आप नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में डिवाइड करने के अलावा एक तरीका लगा सकते हैं. व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 टिल 21. ये 5 कहाँ से आ रहा है? दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4 टिल 21. जो भी नंबर हमारा ये बचा है ना 28 के मल्टीपल से कम, उसने तक हमारे पास जो भी 4 के मल्टीपल्स हैं उनको ऐड करो and divide this number by 7, find the remainder. So it will give you remainder 5, which means this will give you 5 odd days. This will give you 5 odd days. तो यहाँ तक हमारे पास आते हैं 6 odd days. और हम बात कब की कर रहे हैं? 26 जनवरी की. यानी जनवरी 1950 के हमारे पास 5 डेज और ऐड होंगे. तो हमारे पास 26 जनवरी 1950 तक टोटल 11 odd days, मतलब 1 वीक 4 डेज ये बचता है. सो आइडियली तो अगर हम चेक करें तो हम बार बार बोल रहे हैं कि 1 पर मंडे आएगा, 2 और डेज मतलब ट्यूसडे, 3 और डेज मतलब वेंसडे, 4 और डेज मतलब थर्सडे, 5 और डेज विल बी अ फ्राइडे, 6 और डेज विल बी अ सैटरडे एंड 0 और डेज विल बी अ संडे. ऐसे हम लोगों ने लिखा है. तो हमारे हिसाब से 4 और डेज मतलब इट शुड बी ए थर्सडे. लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर ये संडे होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते. तो वो हमें कहता है कि चार दिन अगर बचते हैं तो आप उसको संडे बोलो. तो अगर हम 4 को संडे बोल रहे हैं तो 5 विल बी अ मंडे, 6 विल बी अ ट्यूसडे, 0 विल बी अ वेंसडे, 1 विल बी अ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल चेंज हो गया. हमारा वीक जो मंडे से शुरू होता था, एज पर देयर कैलेंडर हमारा वीक थर्सडे से शुरू होगा. तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है 18 जुलाई 1432. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि 18 जुलाई 1432, 1431 हमने लिखा सबसे पहला काम, जिसको हमने लिखा 1200 प्लस 200 प्लस 31, जिसमें हमारे पास 0 और डेज, 3 और डेज यहाँ पर आ रहा था. 31 माइनस 28 हमने किया और हमारे पास आ गए 3, और 3 से हमारे पास 3 ही और डेज आ रहे थे जो हमने अभी अभी सीखा था. तो 6 और डेज हमारे पास यहाँ तक आ गए. कहाँ तक? 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1431 तक. लेकिन हमें जाना कहाँ है? जुलाई तक. तो हमें जैन फेब मार्च क्रॉस करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज़ 2 3 2, और जुलाई के 4 दिन हम लोग बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि 18 जुलाई है, 2 हफ्ते 4 दिन है ना. सो ये 7 डेज हटा दो, कैलेंडर रिपीट हो रहा है. तो टोटल हमारे पास बनते हैं यहाँ पर 10 ऑड डेज, जिसका मतलब होता है 10 ऑड डेज का मतलब होगा कि 1 वीक 3 डेज. तो वैसे तो दोस्तों 3 ऑड डेज का मतलब होता वेंसडे. Ideally it should have been a Wednesday, but as per the given calendar it will be a Saturday. So the right answer is Saturday. So guys, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, if you practice it for a day or two, trust me, you'll be able to solve these questions orally. So फिर से मिलेंगे आपसे मेरे चैनल पर with a new topic. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys. Thanks for watching.